आदाब नाज़रीन, खुशामदीद है आपका स्कास्ट मैगज़ीन के एक और शुमारे में नेक तमन्नाओं और आपकी खैरियत के लिए नेक ख्वाहिशात के साथ। नाज़रीन, आज जब हम साल 2026 के पहले महीने में आपके रूबरू बात कर रहे हैं, हमें इस बात की बेहद खुशी और इस चीज़ का फ़ख्र है कि स्कास्ट कश्मीर तरक्की की राहों पर तेज़ी से गामज़न है और हर आने वाले दिन के साथ यूनिवर्सिटी कामयाबियों का एक एक संग-मील तय कर रही है। इन्हीं कामयाबियों की बदौलत स्कास्ट कश्मीर ने अपना सबसे ऊंचा मकाम बनाया है और आज इसको मुल्क की तीसरी बेहतरीन ज़र यूनिवर्सिटी के तौर पर जाना जा रहा है। जी हाँ, इन अचीवमेंट्स की बदौलत स्कास्ट कश्मीर ने हाल ही में 7 करोड़ रुपए के आला सतह के R&D प्रोजेक्ट जीतकर एक बड़ी साइंसी कामयाबी हासिल की है। आज के शुमारे में हम आपको इस हवाले से एक रिपोर्ट दिखाएंगे और भी दिलचस्प रिपोर्ट्स आपके लिए पेश करेंगे आज के एपिसोड में। लेकिन आगाज में देखते हैं कामयाबियों का जश्न। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ने गुज़िश्ता दिनों इनोवेशन, तदरीसी कारकर्दगी, कम्युनिटी आउटरीच और इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड पेश किए। पेश है इस सिलसिले में हमारी ये खास रिपोर्ट। नए साल के आगाज पर स्कास्ट कश्मीर के ज़रई साइंसदानों, तालिब इल्मों और यूनिवर्सिटी के अमले की कारकर्दगी को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के दौरान यूनिवर्सिटी की उन काविशों को भी एजाज बख्शा गया जिनकी बदौलत इस इदारे को मुल्क की तीसरी बेहतरीन रियासती ज़रई यूनिवर्सिटी का मकाम मिला है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब पर रजिस्ट्रार प्रोफेसर अजमत आलम खान, डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रिहाना हबीब कंठ, डायरेक्टर एजुकेशन मोहम्मद अल्ताफ भट्ट, मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के डीन्स, स्कास्ट कश्मीर के कंट्रोलर, इम्तहानात और अफसरान के अलावा तालिब इल्मों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। रजिस्ट्रार प्रोफेसर अजमत आलम खान ने गुजरे हुए साल की कामयाबियों का एक जायजा पेश किया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी को जम्मू व कश्मीर की पायदार ज़रई पैदावार और इक़्तिसादी तरक्की में मरकजी हैसियत हासिल है। The last year which has gone by, we have tried to come up to the expectations, even above the expectations, and then we have tried to scale the unfathomable heights and achieve that was seemingly impossible. The first thing that is the ranking of this university, the highest ever ranking we got, and then we had hold our 6th convocation. This was a convocation with difference. Normally in convocations universities award degrees, but the difference here was that we were able to felicitate our innovators as well as our startups. That was something different. Then in education we emerged as national leaders. The number of students from other states other than Jammu and Kashmir, it is quite high. Almost 300 students joined us from other states. Then our teachers and our students, they have made us proud through their accomplishments and awards. And this is our NSS volunteer who was awarded by the President of India. We have been able to release some 16 high-yielding climate-resilient varieties recently. Ambri, our heritage apple, known for aroma, it tops the list. And this is Tarmiim, the first gene-edited sheep. We are the leaders in research. Here, we are the lead center. We are leading the national research on application of electronic and ICT in agriculture. Another very important project that is Rural Technology Action Group. This is directly looked after by Principal Scientific Advisor in the Prime Minister's office. And we are the only agriculture university. Other institutes, they are the IITs. Then new facilities are coming up in our universities, like the Ex-situ Gene Bank has come up. Then we have the speed breeding facilities, fiber testing laboratory, biofertilizer production facilities coming up, remote sensing labs, soil testing labs. Then this is Center for Excellence on Herbal Technology. Beautifully. Then this year we were able to secure the 7.2 crore funding for 8 projects
under ANRF. We have completed the century of patents, and currently we are holding 103 patents. We are building the new models of extension, the Viksit Krishi Sankalp Abhiyan, then student rural exploration program, and the students are there in the field, and these are the other extension and outreach impact. You can see the total farmers that they have been able to reach is 1.6 lakh, more than that. We were able to bloom tulips in Sagam also. Then chrysanthemum show here at Shalimar campus as well as at the Lal Chowk. Then the livestock show at Shohama, the Hangul conference, then the capacity building of IFS officers, then Anekta Mein Ekta Divas, where we were able to showcase our student diversity. Then of course HADP midterm review also happened, and we ended the year with this Iran Connect, where the Irani Kabir met Irani Sagir. तकरीब के दौरान साइंसदानों, फैकल्टी मेंबरान, तालिब इल्मों, स्टार्टअप्स, रिसर्च स्कॉलर्स, केवी के सरबराहान, HADP और JKCIP जैसे बड़े प्रोजेक्टों के सरबराहान को मुख्तलिफ ज़ुमरों में एजाज़ात पेश किए गए। अचीवर ऑफ द ईयर के उन्वान से दिए गए ये एजाज़ात इनोवेशन, तदरीसी उम्दगी, कम्युनिटी आउटरीच और इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए अता किए गए। अपनी तकरीर में वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने यूनिवर्सिटी की तरक्की, हर शोबे में नुमाया कारकर्दगी और कामयाबियों का सहरा इदारे के अमले की बेलूस मेहनत के सर बांधा। उन्होंने नए साल के लिए अहदाफ मुकर्रर करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी को आलमी सतह पर एक मॉडल के तौर पर मुतारिफ करना, जम्मू व कश्मीर में ज़राअत के शोबे को नई ऊंचाइयों तक ले जाना और यूनिवर्सिटी को एक स्ट्रैटेजिक थिंक टैंक के तौर पर पेश करना हमारा टारगेट होना चाहिए। These are the achievements of my officers of this university, of my faculty of this university. These are the achievements of my administrative department, of the finance department, and these are the achievements of my students of the university. These are the achievements of my non-teaching staff of the university, and these are the achievements of that man who stands on my gate and was securing this campus day and night. ये सारी achievements आपकी है। Therefore, कोई लीडर अपने से कामयाब नहीं होता है जब तक कि उसके पीछे इतनी मजबूत टीम न हो। तो आज हम इसीलिए यहाँ पे जमा हुए हैं that we celebrate our achievements of the year 2025. हमारी यूनिवर्सिटी में हर एम्प्लॉय को, वो टीचिंग हो, वो नॉन टीचिंग हो, वो ऑफिसर हो, वो कोई भी हो, उसको कहने के लिए एक बड़ी स्टोरी है 2025 की। Achievements we have celebrated, but is this year 2026 with some renewed energy we are now joining this university, beginning this year 2026, with new commitments and with unlimited opportunities and the possibilities. अब हमें उस दिशा में जाना है। तकरीब के मौके पर स्कॉस्ट कश्मीर का शाया करदा साल 2026 का खूबसूरत कैलेंडर भी लॉन्च किया गया। इस कैलेंडर के हर सफ़े पर यूनिवर्सिटी की इनफरादियत और तरक्की की कहानी को जाहिर किया गया है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के रिसाला शालीमार एग्रीटॉक का दिसंबर 2025 का एडिशन भी जारी किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी में होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात, कामयाबी की कहानियाँ और नए साल के लिए वाइस चांसलर का रोड मैप शामिल है। तकरीब के दौरान जॉइंट रजिस्ट्रार परवेज अहमद भट्ट की सर्विस और कारकर्दगी की खुसूसी तौर पर सराहना की गई। एजाज हासिल करने वालों और दीगर मुत्तलिकीन ने इस मौके पर स्कॉस्ट मैगजीन के साथ अपने तासुरात शेयर करते हुए कहा, We have this history of achieving great things, of doing things differently. क्योंकि अगर हम अपने पिछले साल को देखें तो we have done great things, but definitely there is a long way to go. तो हमारे जो VC सर हैं and entire university staff, हमारे लिए एक मौका था to come together and to celebrate our togetherness and to celebrate our achievements, जहाँ पे सारे teaching, non-teaching and of course student जो हैं उनको एक साथ आने का मौका दिया गया so that we can share our stories and we can promise for a better future. So we know that SCOST is excelling and we have the same legacy.
So we have to take it forward, and that's what was inculcated in us today as well. So yeah, that's to 2026, new beginnings and new achievements. جتنے بھی لوگ پورے سال میں جو کام کرتے ہیں ان کی انکریجمنٹ کے لیے اور اسٹوڈنٹ انکریجمنٹ کے لیے یہ ایونٹ کیا جاتا ہے. اور اس ایونٹ کا وہی ایک مقصد ہے کہ جو ہمارے ینگسٹرس ہیں ان کو تھوڑی سی انکریجمنٹ ملے, اور ایک جو یونیورسٹی کا ایک ویژن اور مشن ہے کہ جو وکست بھارت 2047 میں کیسا ہماری یونیورسٹی ہونی چاہیے اور کیسے ہم آگے بڑھے تاکہ ہم اپنی اسٹیٹ کے لیے اور اپنی کنٹری کے لیے جو ہے ایک مثالی انسٹیٹیوشن کی طرف ابھر کے آ جائیں. سب نے ایگزمپلری کام کر کے یونیورسٹی کو آگے بڑھانے کی بہت اچھا کی ہے, جن کو آج یہاں انہوں نے اور ان کے جو آفیسرس ہماری یونیورسٹی کے تھے انہوں نے ان کو ریکگنائز کر کے ایک کائنڈ آف انکریجمنٹ شاٹ ان دا آرم ہوتا ہے اس امپلائی کے لیے جو کام کر کے یہ ان کو ایک دن اس دن سرٹیفکیٹ اینڈ ایوارڈ ملے تو یہ ان کے گھر اور ان کی فیملی کے لیے بہت عزت کی بات ہوتی ہے. زرعی یونیورسٹی کی عمدہ کارکردگی کو نہ صرف جموں کشمیر میں حکومتی سطح پر بلکہ قومی اور عالمی سطح پر بھی سراہنا کی جا رہی ہے. یہ سب یونیورسٹی کی کامیابیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ بڑے پیمانے پر پروجیکٹس کو مالی تعاون فراہم کیا جاتا ہے. اس ضمن میں ایک بڑی کامیابی اس وقت ملی جب سکاسٹ کشمیر کو انوسندھان نیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن ANRF کی جانب سے زرعی انوویشن کے لیے 7.2 کروڑ روپے کی گرانٹ حاصل ہوئی. 8 R&D پروجیکٹس کو دی جانے والی فنڈنگ زرعی انوویشن کو فروغ دینے اور یونیورسٹی کو جدید تحقیق اور اختراعات کا ایک اہم مرکز بنانے میں اہم کردار نبھا سکتی ہے. اس سلسلے میں جب سکاسٹ میگزین نے یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی سے استفسار کیا تو انہوں نے اپنے تاثرات یوں بیان کیے. حال ہی میں ANRF نے ہماری یونیورسٹی کو قریب 8 پروجیکٹس سینکشن کیے ہیں جو کمپٹیٹو موڈ میں پروجیکٹس تھے. قریب 12,000 سے زیادہ اپلیکیشنز ریسیو ہوئی تھی ANRF میں, اور ہمارے 8 پروجیکٹس قریب 7 کروڑ سے زیادہ کے جو ہے نا فنڈنگ کے ساتھ اپروو ہوئے ہیں. اور یہ 7 پروجیکٹس جو کی چیلنجز ہیں ہمارے یہاں پہ جموں کشمیر میں, چاہے وہ ایپل میں ڈیزیز ریزسٹنٹ ویرائٹیز ہو. ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہاں پہ اسکیب ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور جس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کئی سارے اسپریز کا یوز کرنا پڑتا ہے. تو ایک پروجیکٹ ہمارا ہے ایپل ویرائٹیز پہ جو ان کو ہم ڈیزیز ریزسٹنٹ بنائیں گے اسکیب کے اگینسٹ میں. اسی طرح سے سیفران ہمیں سال میں ایک بار اس کا جو پھول آتے ہیں اس میں ایک بار, تو اس میں ایک لانگ ڈورمنسی ہے. تو ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی کرسپر کیس ٹیکنالوجی, اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم کوشش یوں کریں گے ہم اس ڈورمنسی کو کیسے بریک کریں گے اور ہم نئی طریقوں سے سال میں 2 بار بھی کیسے لے سکتے ہیں. بہت ہی آؤٹ آف باکس تھنکنگ ہے, تو گورنمنٹ آف انڈیا ایسی پروگرامز کو سپورٹ کرتی ہے. اسی طرح سے جو یہاں پہ ڈائگنوسٹک فیسلٹیز کی ہمیں کمی ہے, جیسے ہمیں یہاں پہ پیسٹ انفیسٹیشن بہت زیادہ ہے, تو پیسٹ کو ہم کیسے مانیٹر کریں اور ان کو کیسے کنٹرول کریں, اس کے لیے بھی ایک پروجیکٹ ہے. یہ سارے جو پروگرامز ہیں ان کی وجہ سے ہمارا آنے والے سمے میں جو ایگریکلچر کو ہم نے ایک نئی دشا دینی ہے, ایک نئی سمت دینی ہے, وہ ان ایڈوانس ٹیکنالوجیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے, جس میں بایو ٹیکنالوجی ہے, بایو انفارمیٹکس ہے, کمپیوٹیشنل بایولوجی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, اسپیڈ بریڈنگ ہے, کرسپر کیس ٹیکنالوجی ہے. تو شاید بہت ساری یونیورسٹیز میں ابھی ان کا فقدان ہے, لیکن ہماری یونیورسٹی نے ان ایڈوانس ٹیکنالوجیز میں کافی لیڈ لی ہے. گزشتہ دنوں سکاسٹ کشمیر کے زیر اہتمام پلوامہ میں ماؤنٹین ریسرچ سینٹر فار شیپ اینڈ گوٹ کی طرف سے ایک اسٹارٹ اپ کیشویٹ انوویشن پرائیویٹ لمیٹڈ اور کرشی وگیان کیندر پلوامہ کے اشتراک سے ایک سائنٹسٹ شیپ بریڈرز میٹ کا انعقاد کیا گیا. اس پروگرام کا مقصد بھیڑ پالن سے وابستہ کسانوں کو بھیڑوں کی افزائش, صحت کی دیکھ بھال, خوراک وغیرہ کے بارے میں بر وقت جانکاری فراہم کرنا تھا. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پروگرام کے دوران کیا کیا سرگرمیاں عمل میں آئیں. انوویٹو اقدامات کے ذریعے یونیورسٹی اور کسانوں کے روابط کو مضبوط بنانے کی خاطر منعقدہ اس پروگرام میں وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے, جبکہ ڈائریکٹر ایکسٹینشن پروفیسر ریحانہ حبیب کنٹھ اور شیپ ہسبنڈری محکمے کے ڈائریکٹر رفیق احمد شاہ نے بھی تقریب میں خاص طور پر شرکت کی.
वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने अपनी तकरीर में कहा कि किसानों तक भेड़ पालन से मुंसलिक जरूरी जानकारी बर वक्त पहुंचाने से इस शोबे को मुनाफा बख्श बनाया जा सकता है। उन्होंने साइंसदानों और भेड़ पालन के साथ जुड़े अफराद के दरमियान एक मजबूत इंटरफेस बनाने पर मुंतजमीन की तारीफ की। आज का जो हमारा इवेंट था वो था हमारे जो यहाँ पे कश्मीर में जो शीप ब्रीडर्स हैं उनको हमने आज साइंटिस्ट के साथ एक डे इंटरेक्शन में ये बताना था कि हम शीप फार्मिंग को नए तरीक़ों से हम कैसे करेंगे। हम उनको एक नई जो नस्ल के हमने शीप ब्रीड्स यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लाई है उनको वहाँ तक उन तक कैसे पहुँचाएँ और उसके बाद उनका जो मैनेजमेंट भी बहुत ही ज़रूरी है। उनका फीड कैसा होना चाहिए, उनका मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, उनका हेल्थ कवर कैसा होना चाहिए, उनकी मार्केटिंग कैसे होनी चाहिए और उसके साथ में जो स्कीम्स हैं, चाहे वो HDP की स्कीम्स हैं, JKCIP की स्कीम है या नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, ऐसी कई सारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उनके बारे में भी हमने उनको बताया कि वो सरकार में जो हमारे डिपार्टमेंट है, रेलेवेंट डिपार्टमेंट, उनके साथ मिल के जानकारी लेंगे और जो है ना इस सेक्टर में अब ये कमर्शियल शीप फार्मिंग की तरफ आ जाए। अभी तक जो हम फार्मिंग कर रहे थे वो ट्रेडिशनल हुआ करता था, लेकिन अब हमने जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने फार्मर्स को कुछ यूनिट्स दे दिए ताकि कमर्शियल फार्मिंग में आ जाएं और साथ में हम अपने फार्मर्स को ये भी बता रहे हैं कि शीप फार्मर्स के साथ में वो शीप ब्रीड फार्मर्स भी खोल दें जिससे जो उनकी जो आमदनी है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। महकमा शीप हस्बेंड्री कश्मीर के सरबराह रफीक अहमद शाह ने भेड़ पालने वालों के लिए दस्तयाब सरकारी स्कीमों के बारे में तफसील से बताया। डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रिहाना हबीब कंठ ने स्कॉस्ट कश्मीर के मुख्तलिफ तौसीही प्रोग्रामों का तज़किरा किया। आज कृषि विज्ञान केंद्र पुलवामा में एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम था जो कि साइंटिस्ट और स्टेक होल्डर्स वर्कशॉप था शीप ब्रीडर्स के लिए। जैसे कि आपको पता है कि ईयर 2026 अब इंटरनेशनल ईयर ऑफ पेस्टोरलिस्ट एंड रेंजलैंड्स का है और इस में हमें ये देखना है कि हमारे जो अगले साल का एक्शन प्लान है, हमारी कोशिश रहेगी कि पेस्टोरलिस्ट या रेंजलैंड का जो प्रोटेक्ट करते हैं या शीप ब्रीडर्स या गुजर बकरवाल ट्राइबल्स चौपान लोग, इनके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स करें। इसमें हमने जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के 200 शीप ब्रीडर्स थे उन्हें लाया था और उनको हमने पूरी साइंटिफिक नो हाउ दिया कि कैसे उनकी हाउसिंग करेंगे, बैलेंस फीड देंगे, प्रॉपर वैक्सीनेशंस करेंगे और कैसे हम उनके लिए एनिमल क्लिनिक कैंप्स लगाएंगे और जो भी हमें एक साइंटिफिक शीप ब्रीडिंग के लिए चाहिए, जैसे सबसे पहले चॉइस ऑफ ब्रीड, कौन सी ब्रीड उनको लेनी चाहिए, अगर उनको मटन के लिए है या वूल के लिए है या जो उनको आगे और ब्रीडिंग करने के लिए है, तो कैसे वो चूज़ करेंगे। तो ये हमारे साइंटिस्ट आज उनको सारे बता रहे हैं और जो हमसे, हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन से, स्कॉस्ट कश्मीर से जो भी आउटरीच हमारे शीप ब्रीडर्स के लिए हो सकती है और जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग या हैंड होल्डिंग हो सकती है या कैसे ये स्कीम्स का फ़ायदा उठाएं, चाहे वो JKCIP में है या HADP प्रोजेक्ट्स में है, तो इनको आज हमने ये बताया। डिस्ट्रिक्ट शीप हस्बेंड्री ऑफिसर पुलवामा ने जिले में चलाई जा रही मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी दी। प्रोग्राम में इश्तराक करने वाले स्टार्टअप कैशवेट इनोवेशंस के बानी और MRCS&G के सीनियर साइंसदान डॉक्टर परवेज अहमद ऋषि ने कहा कि इस वक्त उनके स्टार्टअप के साथ 21,000 से ज्यादा अफराद मुंसलिक हैं जो भेड़ पालन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक साइंटिस्ट शीप ब्रीडर्स मीट हुई जिसमें तमाम जो भी पुलवामा है पूरे शीप ब्रीडर्स, बड़े बड़े जो शीप ब्रीडर्स है वो आए थे। इनके साथ इंटरेक्शन हो गई, एक टेक्निकल सेशन हो गया जिसमें जो भी साइंसदान हज़रात आए थे स्कॉस्ट कश्मीर की जानिब से, वेटनरी साइंटिस्ट्स, तो उन्होंने इनके साथ इंटरेक्शन करके जो भी इनके क्वेश्चंस थे, जो भी इनकी क्वेरीज थी, उनको एड्रेस किया। इनके साथ साथ जो यहाँ पे ऑनरेबल वाइस चांसलर है उन्होंने कुछ अच्छी बातें इनको बताई कि कौन सी टेक्नोलॉजीज़ है, क्या साइंटिफिक एडवांसमेंट्स है, कैशवेट इनोवेशंस क्या है, इस कैशवेट इनोवेशंस को कैसे हमने बराह रास्त यहाँ पे ज़मींदारों के खेतों या ज़मींदारों के दहानों पे ये टेक्नोलॉजी लाई जो कि यूनिवर्सिटी में बनी है, जो कि डिवीज़न ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन इसको देख रहा है। इसके साथ साथ जो शीप हस्बेंड्री के डायरेक्टर साहब थे उन्होंने जितनी भी स्कीम्स है, जितनी भी एडवांसमेंट्स है शीप हस्बेंड्री की तरफ से जो भी है, तो उसके बारे में बताओ। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। इंशाअल्लाह ताला हम बाकी जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे ऐसे प्रोग्राम आइंदा आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला मुरतब करेंगे।
तकरीब के मौके पर कैशवेट इनोवेशंस की जानिब से कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के तहत पुलवामा के एक जिस्मानी तौर नाखैज शख्स को 5 भेड़ें तोहफे में देकर उसे बाइख्तियार और खुद इन्हिसार बनाने की जानिब एक मस्बत पहल की गई। शुरका ने इस तरह के प्रोग्रामों को फायदा बख्श करार दिया कि इस प्रोग्राम का मकसद है लोकल यूथ को एम्पावर करना है और हमारी इकानमी को डबल करना है। इसलिए यहाँ पे एक आज बहुत ही अहम इजलास हुआ है और इसमें हमें अलाइड डिपार्टमेंट्स के बारे में, स्कीमों के बारे में और मज़ीद जानकारी मिलता ही है यहाँ पे। कास्टन फोन दोपन तह नुकसान गोमुत बस करो अमुक मदद तो बेत वन दोपन अगर बेत क्या मान अम मजीद आस तो बस कर वारिया मदद। मुआवजस मज दिख तीर 5 बे दिख फेड़ बे दोपुक अगर बेत क्या मान मदद आ जरूरत सह कर बह पाने। गुज़श्ता दिनों शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर की 45वीं एकेडमिक काउंसिल मीटिंग वाइस चांसलर के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िद हुई। इस मीटिंग के दौरान किन अहम अमूर पर बातचीत हुई, क्या क्या अहम फैसले लिए गए और किन मंसूबों का जायज़ा लिया गया, इस हवाले से आपके लिए पेश है सुकास्ट मैगजीन की ये रिपोर्ट। मीटिंग की सदारत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और एकेडमिक काउंसिल के चेयरमैन प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने की, जबकि दीगर मुअज़्ज़ज़ मेंबरान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर अशोक एमा, चीफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड पब्लिक पॉलिसी ऑफिसर डॉक्टर सिब्बी चतुर्वेदी, जम्मू यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के सरबराह प्रोफेसर सुशील वर्मा, रजिस्ट्रार क्लस्टर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सईद विलायत हुसैन और कश्मीर यूनिवर्सिटी से वाबस्ता प्रोफेसर फारूक मसूदी शामिल थे। रजिस्ट्रार प्रोफेसर अजमत आलम खान ने 2025 के दौरान यूनिवर्सिटी की तरक्की और मुस्तकबिल का रोड मैप पेश किया। ये 45th एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग थी। ये जो एकेडमिक काउंसिल होता है, ये जो हमारे एकेडमिक प्रोग्राम्स है, जो हमारी टीचिंग है, जो यहाँ का एजुकेशन है, उसकी कैसे खदखाल हो, कौन से स्टैंडर्ड्स हम सेट करें, उसके बारे में ये मीटिंग होती है। साल में 2 बार होती है ये मीटिंग और इसमें नए नए कोर्सेज़ या जो कोर्सेज़ ऑलरेडी है उन कोर्सेज़ में क्या चेंज करने की ज़रूरत है ताकि वो जो वक्त के मुताबिक हो। हर बार की तरह जो नए और आइडियाज़, आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज़ प्रेजेंट किए गए और हाउस ने उनको कंसिडर किया। इसमें न सिर्फ हमारे सारे HODs, डीन्स, ऑफिसर्स और कुछ एक्सपर्ट मेंबर्स को हमने बुलाया था ताकि हम डेलिब्रेट करें कि हमारा आगे एजुकेशन यूनिवर्सिटी में कैसे हो और क्या क्या चेंजेस या क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हमें करने की ज़रूरत है। मीटिंग के दौरान यूनिवर्सिटी की मजमूई तरक्की के हवाले से कई अहम अमली व तहकीकी इक़दामात पर तबादुल ख्याल किया गया और कई अहम प्रोजेक्टों की अमल आवरी का जायजा लिया गया। मीटिंग में डायरेक्टरेट ऑफ सीड्स एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के क़याम को मंजूरी दी गई। काउंसिल ने बुनियादी पॉलिसी अमूरात और तदरीसी मयार को बढ़ाने के लिए इक़दामात पर गौर किया। इसके अलावा नए डिग्री प्रोग्राम शुरू करने और कोर्स के निसाब को असर-ए-नौ तरतीब देने के हवाले से मुतादिद तजावीज़ को मंजूरी दी गई। मीटिंग की अहम तफसीलात के हवाले से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और एकेडमिक काउंसिल के चेयरमैन प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने स्कॉस्ट मैगजीन के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का इजहार कुछ इस तरह से किया। हमारी यूनिवर्सिटी ने पिछले कई सालों से जो नेशनल रैंकिंग में काफ़ी बढ़ोतरी करी है। वी आर 3rd बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री इन एग्रीकल्चर। नाउ वी आर एमिंग टू बिकम among the top international universities from the country. So towards that, we are also looking for how do we get the accreditation from the international bodies. So we were just discussing in this meeting about the building our capacities, and the facilities and the human resource towards that end, and bringing in some new market-driven programs in the university.
and also trying to see that which are those international organizations with whom we can collaborate to see that we build our capacity and the standards of this university. ज़रई यूनिवर्सिटी की जानिब से मीटिंग में डायरेक्टर रिसर्च प्रोफेसर हारून रशीद नाइक, डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रिहाना हबीब कंठ, ज़राअत, जंगलात, वेटरनरी साइंसेज और फिशरीज की फैकल्टीज़ के डीन, ज़रई इंजीनियरिंग और सेरिकल्चर के एसोसिएट डीन, यूनिवर्सिटी के सीनियर अफसरान, साइंसदान, फैकल्टी मेंबरान, इंतज़ामी और गैर तदरीसी अमले से वाबस्ता कारकुन शामिल रहे। आइए नाज़रीन, अब आपको दिखाते हैं कि हमारे माहिरीन इस बार किसानों और ज़रई शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए क्या ख़ास मशवरे और हिदायत लेकर आए हैं। पेश है हमारा फार्म एडवाइजरी सेगमेंट। आगे आने वाले हफ्ते में मौसम पार्टली क्लाउडी रहेगा और बारिश के इम्कान नहीं रहेगा। अगर हम एग्रीकल्चर फील्ड क्रॉप्स की बात करें जिसमें वीट, ओट, ब्राउन सरसों फील्ड भी आते हैं, आप वाटर लॉगिंग कंडीशन को अवॉइड करने के लिए चैनल्स को ओपन रखें और इंटरकल्चरल ऑपरेशंस को स्टॉप करें जब तक टेम्परेचर राइज नहीं होता। और अगर हम मशरूम्स क्रॉप्स की बात करें तो आप सैनिटाइजेशन और हेल्दी इन्वायरमेंट को मेंटेन करें और टेम्परेचर को आप मेंटेन कर सकते हैं 16 to 18 डिग्री सेल्सियस तक। और अगर हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करें जिसमें एप्पल एक्स्ट्रा आते हैं तो आप प्रूनिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं और डिजीज़ वुड और डेब्रिस को आप रिमूव कर सकते हैं। वेजिटेबल्स क्रॉप्स पे आते हैं तो लीफी वेजिटेबल्स के लिए आप पॉली हाउस का इस्तेमाल कर सकते हैं और जहाँ पर आपको लगता है आप मल्च का यूज़ कर सकते हैं टू अवॉइड द फ्रॉस्ट कंडीशन। और अगर हम आते हैं पोल्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री पे जिसमें काउ, गोट, शीप और पोल्ट्रीज फॉर्म आते हैं तो आप उनके लिए प्रॉपर वार्म बेडिंग मेंटेन करें, उनको ल्यूक वार्म वाटर प्रोवाइड करें और उनकी प्रॉपर वार्मथ बेडिंग प्रोवाइड करें और उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। आज के शुमारे में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके साथ फिर होगी मुलाकात दिलचस्प और कारआमद मालूमात के एक खजाने के साथ। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आप रखें अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।